अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. Hi, I am Jandeep Kaur. I secured All India Rank 147 in the UPSC Civil Services Examination 2024. In this video, I will share with you my journey with the UPSC, my preparation strategy, the resources that I used, and the mistakes that I committed. I believe that my preparation strategy can be helpful for the people or for the candidates who are preparing for the UPSC, sitting at their home, who cannot come to Delhi for preparation, and who are also working while doing the preparation and who have the paucity of the time. So coming to my journey with the UPSC preparation, I have been working with Income Tax Department as inspector since 2018. This was my last attempt with the UPSC. But I had also given the attempts in the year 2017 and 18. When I was appearing for the UPSC at that time, I did not prepare for UPSC as such. So I was appearing for other competitive examinations such as SSC, CGL and other examinations. So with my limited knowledge only, I appeared for the UPSC and definitely I could not clear the prelims examination then. In 2018, I started working in the Income Tax Department and I was quite happy with the job because I got the posting in my hometown only and the work was also interesting. But after 2-3 years, I realized that there is a lot of stagnation at the lower levels. And that is when I decided that I should prepare for the UPSC, because I also got to know that at the higher levels, you can create higher impact. At the higher levels, you can be much impactful when it comes to the administration, when it comes to the governance, and when it comes to helping the people. So this is what motivated me to appear for the UPSC again with wholehearted preparation, and I resumed my preparation in 2021. So 2021 के प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले मैंने दोबारा तैयारी शुरू की थी and again in my third attempt I was not able to clear the prelims. But उस prelims के बाद मैंने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी अपनी. And the one thing was clear at that time in my mind that if I am able to complete the syllabus of UPSC, तो मतलब UPSC preparation UPSC हो जाएगा. तो मुझे this was something that I had heard from toppers talks also. So this is what my preparation strategy became after that. I just focused on completing the syllabus. And now after that, I did not know how to arrange the resources for the preparation. So this is how my journey also got prolonged, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि consolidated, concise resources कौन से होने चाहिए. I had the paucity of time also. I was working and I could not have any coaching, foundational coaching जहाँ पे मैं पूरा 1-2 साल का course कर सकूँ. So I focused on consolidating my resources and मेरे resources बहुत ही limited रहे हैं preparation के time. I just focused कि उतने resources रखूं जिससे मेरा syllabus complete हो जाए. So in 2022 I cleared the prelims, but then again I could not clear the mains examination because मेरे sociology में बहुत ही कम marks थे उस time, क्योंकि मैंने prelims के बाद ही sociology की तैयारी शुरू की. So I just relied on Nitin Sangwan at that time, but sociological मेरी understanding नहीं develop हो पाई. बहुत ही generic answers I was writing. So I could score only 157 marks in my first attempt in sociology, both the papers. In my not first attempt, in my 2022 attempt. Then came the 2023 attempt, which was my second serious attempt and technically the 5th attempt. There also I could not clear the mains examination. I missed the cutoff by 15 marks, and but I had improved a lot. So this is what motivated me for the last attempt. And in 2024 attempt, I got the interview call for the first time
and I was able to clear the examination. Now I will share with you all the resources that I used during my preparation. However, I want to give the disclaimer over here that you cannot emulate anybody's strategy or anybody's resources completely, because we all are aware of our own strengths and weaknesses. So by working upon that only, we can prepare our own strategy. When we share the resources, or when we refer to the resources used by the toppers or the other candidates, so it is just to fill the gaps in our preparation. It is just to take the guidance. Otherwise, everyone has to prepare their own strategy, their own resource list as per their strengths, as per how they perceive the things, whatever method is easier for them. So this is what I want to see here. So now coming to the prelims preparation, the resources that I used during the prelims preparation. Here I want to say that हमें लगता है कि prelims का syllabus है जो बहुत ही vast है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है. So I also used to think about like that. But then मैंने इस prelims के syllabus को 6-7 हिस्सों में divide कर लिया. तो बस उसी में सारा कुछ I try to cover. So this consolidated my preparation a lot, and I was able to concise the preparation. So what were those 6-7 subjects? It was history, geography, science and tech, economy, polity, environment and international relations. और इन्हीं के बीच में I used to cover the current affairs as well. I did not read the current affairs as a separate subject. जब मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करती थी तो उसके साथ में करंट अफेयर्स भी कर लेती थी. सो इससे मेरी प्रिपरेशन बिकेम वेरी इजियर एंड कंटिन्यूटी बनी रहती थी और एक रिवीजन भी हो जाती थी स्टैटिक. सो स्टार्टिंग विद द पॉलिटी में ज्यादातर लोग लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं, बट आई डिड नॉट फॉलो इट बिकॉज बहुत ही बल्की बुक लगती थी मुझे, और मुझे लगता था कि आई विल नॉट बी एबल टू रिवाइज इट टाइम एंड अगेन. शायद मेरे से रिटेन ना हो पाए और शायद मुझे प्रिपरेशन में भी ज्यादा टाइम लगे. सो आई वेंट विद अनअकैडमी की एक बुक थी. मैंने अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ली थी प्रीलिम्स के लिए. तो अनअकैडमी की पॉलिटी की बुक है विच आई रेफर्ड एज माय बेस रिसोर्स. को मैंने पहला प्रीलिम जब क्लियर हुआ उसको मैंने आई हैड रिवाइज्ड इट फॉर 5 to 6 टाइम्स. एंड देन फॉर पॉलिटी के करंट अफेयर्स के लिए इनसाइट्स IAS के RTM क्विज आते हैं, तो उससे दैट उनका एक वो PDFs आती हैं लास्ट में मंथ वाइज, तो उससे मैं पॉलिटी की करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेती थी. एंड द थर्ड थिंग वाज विजन 365 के जो करंट अफेयर्स हैं. सो दिस इज हाउ मेरा पॉलिटी का दिस वाज द ओनली मटेरियल आई हैड फॉर द पॉलिटी. एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिशा पब्लिकेशंस की कुछ 1995 से लेकर के मतलब करंट तक जो बुक आती है उसमें 30 इयर्स कुछ के करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड रहते हैं. तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. दैट गिव मी द नैक ऑफ सॉल्विंग द MCQs एंड हाउ टू मेक द कैलकुलेटिव गेस. And matlab this is how I was able to sharpen my skills with respect to solve the MCQs. So this is what I followed for polity. Second most important subject is the economy. तो उसका भी मैंने सिर्फ सिंगल रिसोर्स रखा. That was मृणाल सर की जो PDF आती है 1000 पेजेस की वो बुकलेट होती है, तो मैं वही पढ़ती थी. करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने कोई सेपरेट रिसोर्स नहीं यूज किया. उसी में सर हर जो नई PCB की बुक आती है उसमें पुराने करंट अफेयर्स कवर्ड रहते हैं. तो हर बार जब भी मैं रिवाइज करती थी तो मैं सर की नई PCB की बुकलेट उठा लेती थी, तो उसी को रिवाइज करती थी. एंड देन PYQs ऑफ कोर्स, वही दिशा पब्लिकेशंस की PYQs की बुक, उससे इकोनॉमी की सारी कवरेज हो जाती थी. एंड देन सर का एक विन सीरीज आती है प्रीलिम से पहले, सो उससे जो करंट अफेयर्स रह जाते थे वो भी कवर हो जाते थे. देन कम्स द ज्योग्राफी सेक्शन. In the geography section, I relied upon the Sudarshan Gurjar sir's classes. तो मैंने सुदर्शन गुर्जर सर के सारे क्लासेस के नोट्स बना लिए थे, फिजिकल ज्योग्राफी के भी एंड देन इंडियन ज्योग्राफी के भी. सर की मैपिंग सीरीज एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी सबके मैंने नोट्स बना लिए थे. बहुत ही कंसाइज नोट्स थे, एक दिन में सारे रिवाइज हो जाते थे. और उसके बाद ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड देन जो विजन 365 के इन्वायरमेंट के सेक्शन में ही थोड़ा ज्योग्राफी का सेक्शन रहता है, सो यहाँ से मेरा ज्योग्राफी कवर हो जाता था. एंड देन कमिंग टू हिस्ट्री. तो हिस्ट्री आप वैसे बहुत ही वास्ट सिलेबस है हिस्ट्री का. देयर इज मॉडर्न हिस्ट्री, देयर इज एंशिएंट, देयर इज मेडिवल एंड देयर इज आर्ट एंड कल्चर. सो इसमें भी मैंने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज रखे. मैंने अपना स्पेक्ट्रम किया उसके मॉडर्न के लिए, उसको मैं मतलब बहुत बार रिवाइज किया.
तो मैं मुझे एक अपनी लिमिटेशन पता थी कि मैं भूल जाती हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें जो होती हैं। तो व्हाट आई डिड वाज कि एक तो मैंने रिवीजन बहुत बार की, एक जब प्रीलिम्स था उससे एक दिन पहले आई यूज्ड टू रिवाइज माय स्पेक्ट्रम। तो वो मेरा फोकस था कि मेरी रिवीजन इतनी हो जानी चाहिए कि स्पेक्ट्रम में एक दिन में दोबारा रिवाइज कर सकूं। सो जब प्रीलिम्स होता था तो एक दिन पहले आई यूज्ड टू रिवाइज माय स्पेक्ट्रम एंड दिस आल्सो हेल्प मी इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में जाके आई यूज्ड टू सी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने एक दिन पहले ही पढ़े हैं, वो आ गए हैं, अदरवाइज आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू रिकॉल दोज facts. So this is how my modern history was covered through spectrum and previous year questions. And for ancient and medieval, में मैंने पहले प्रतीक नाइक सर के जो अनअकैडमी पे वीडियोस थी उनसे अपने रनिंग नोट्स बना लिए। बट सर की जो स्लाइड्स होती थी उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती थी, आई डिड नॉट गो टू देम। सर जो क्लास में बस बोलते थे, सो आई यूज्ड टू जॉट इट डाउन एंड फिर उसको बार बार रिवाइज करना। So this is how my ancient and medieval was covered, and then I also relied upon the NCERT's themes in Indian history 1 and 2 and कुछ अवर पास की जो बुक्स हैं 6th 7th की वो भी मैंने फॉलो की थी। एंड देन क्लास 11th की तमिलनाडु की जो तमिलनाडु स्कूल बोर्ड की बुक है दैट ऑल्सो आई फॉलोड। तो उससे मेरा काफी सारा जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वो कवर हो जाता था, भक्ति सूफी मूवमेंट्स ये सब चीजें कवर हो जाती थी। एंड मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल यूज नहीं किया, एक ओनली आईएएस की एक वीडियो थी, दैट इज व्हाट आई कवर्ड, 4-5 घंटे की एक वीडियो थी। दिस इज हाउ आई कवर्ड द आर्ट एंड कल्चर। एंड दूसरी चीज थी तमिलनाडु स्कूल बोर्ड की बुक्स थी। एंड अदर थिंग वाज जो विजन की 365 करंट अफेयर्स का पीडीएफ होती थी, उसमें आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वो मैं कवर कर लेती थी। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ मेरा आर्ट एंड कल्चर कवर हो गया है। तो मैंने कोई बड़ी बड़ी आर्ट एंड कल्चर की बाकी कोई भी बुक्स फॉलो नहीं की। हाँ, वन मोर थिंग अबाउट द ज्योग्राफी में आई फॉरगॉट टू मेंशन कि मैंने एनसीईआरटी जो हैं 11th की 12th की वो भी एक बार पढ़ ली थी, बट सुदर्शन गुर्जर सर के क्लासेस के बाद इट बिकेम वेरी इजियर उनको एक रीड करना एंड रिटेन करना। एंड थोड़ी सी ह्यूमन ज्योग्राफी भी मतलब सिलेक्टिवली आई हैड रेड दैट। देन कम्स द इन्वायरमेंट सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, मतलब कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। सो इससे मुझे मतलब आई यूज्ड टू बी वेरी फियरफुल ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो इसमें पहले तो मैंने सुदर्शन गुर्जर सर के ही अनअकैडमी की जो क्लासेस हैं उससे नोट्स बना लिए थे। तो काफी सारा जो मैपिंग सेक्शन होता है, नेशनल पार्क्स हो गए, वेटलैंड्स हो गए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ऑल दोज थिंग्स जो भी हमें मैपिंग का होता है वो सारा उससे कवर हो जाता था। स्पीशीज काफी हद तक कवर हो जाती थी एंड बाकी भी सारा इन्वायरमेंट का एक बेसिक सिलेबस है सुदर्शन गुर्जर सर की क्लासेस से कवर किया। एंड देन इन्वायरमेंट के लिए फिर विजन 365 के, तो उससे करंट अफेयर्स कवर हो जाते थे। बट न्यूज़पेपर्स में भी आई यूज्ड टू लुक फॉर द इन्वायरमेंट और इकोलॉजी रिलेटेड न्यूज, क्योंकि वहां से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स यूपीएससी कुछ 2-3 नाम दे के ही इट जस्ट आस्क के क्या है ये, फिश है, बर्ड है, व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज इज दैट। सो मतलब उसके लिए आई ऑलवेज यूज टू कीप लुकिंग इनटू द न्यूज़पेपर्स एज वेल। एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस में आई रिलाइड कंप्लीटली ऑन द करंट अफेयर्स। एंड अदर थिंग वाज कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मैपिंग वगैरह काफी आती है, तो मेरे पास हमेशा आई यूज टू कीप माई atlas along my bedside. तो every day I used to look into the atlas, कोई भी location होती थी, so I used to refer to my atlas and then locate its position and what kind of questions can be asked, what are the neighboring countries, what are the neighboring regions, what are the neighboring seas, जो भी होता था, whatever questions can be asked by the UPSC, which we get the idea from the previous year questions. So that is how I used to cover the international relations. और इंटरनेशनल रिलेशंस के काफी बॉडीज वगैरह जो हैं वो मृणाल सर की इकोनॉमी की जो पीडीएफ्स होती हैं उसमें भी कवर हो जाते हैं। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आई वुड से कि जो मृणाल सर की वो पीडीएफ होती हैं पीसीबी वाली, उसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी कवर हो जाती हैं। तो आई नेवर रेफर्ड एनी अदर रिसोर्स टू कवर द गवर्नमेंट स्कीम्स। सो वहीं से कवर हो जाती थी मृणाल सर की पीसीबी वाले पीडीएफ से। एंड बाकी रह गया सोसाइटी वाला सेक्शन। सोसाइटी भी मैंने जस्ट आई यूज्ड टू डू इट फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड नो स्पेशल रिसोर्स वाज यूज्ड। मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था तो इसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिकली नहीं किया। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रीलिम्स। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि एक तो बेसिक रिसोर्सेज फॉलो करना, एक दूसरा था करंट अफेयर्स को साथ साथ पढ़ना,
उस टॉपिक को कवर करके, उस सब्जेक्ट को कवर करके उसके करंट अफेयर्स करना एंड देन PYQs करना। और मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई प्रीलिम्स की कभी भी, क्योंकि मुझे लगता था आई डिड नॉट हैव दैट मच टाइम, और मुझे लगता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही 2-3-4 बार कर लूं तो उससे काफी ज्यादा मतलब एक वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और उससे वो एक हमारी स्किल्स जो है MCQs वाली वो भी पॉलिश हो जाती हैं। बट आई डिड नॉट फॉलो एनी काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड कमिंग टू द न्यूज़पेपर थिंग, यस न्यूज़पेपर का आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर डेली, बट कभी कभार मिस भी हो जाता था बिकॉज I had always the shortage of time, तो कभी कभार नहीं पढ़ पाती थी, but I didn't never had that kind of FOMO in my mind कि नहीं पढ़ा गया, तो it's okay, it will be covered in the current affairs periods. So ठीक है, I used to read the newspaper, I used to have 45 minutes time for reading the newspaper. अगर किसी दिन मिस हो गया तो ठीक है, it's okay, so I used to go ahead with the next day's newspaper and did not bother about कि पिछला भी cover कर लूँ, because then I always had the shortage of time. So this was my resources for the prelims examination. And now coming to the mains examination. तो mains का भी मतलब ऐसा था कि जब मुझे first mains देना था, I was completely blank कि मैं क्या लिखूंगी, क्या करूंगी। मेरे पास notes थे सिर्फ prelims के थे, mains में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं I had no idea about it. तो जो मटीरियल होता है मेंस का, कुछ मेन स्पेसिफिक होता है, I had no idea about it. तो दिस इज वेयर आई केम अक्रॉस इनसाइट्स के जो मेंस के ब्रिज कोर्सेज होते हैं। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिए एंड उससे अपने नोट्स बनाए। सो आई विल शेयर माय स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू एवरी पेपर इन द मेंस एग्जामिनेशन। पहले GS1 का। GS1 में हमारे पास 3 टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। तो हिस्ट्री के पहले तो मेरे प्रीलिम्स के नोट्स जो हैं, एंड सेकंड सोर्स दैट आई रेफर टू वाज द इंटेंसिव ब्रिज कोर्स ऑफ इनसाइट्स IAS। एंड ज्योग्राफी के लिए भी मैंने सेम ही चीज की, इनसाइट्स का जो ब्रिज कोर्स था एंड प्रीलिम्स का मटेरियल, एंड सोसाइटी के लिए सेम थिंग, इनसाइट्स का ब्रिज कोर्स एंड प्रीलिम्स का मटेरियल। एंड अदर थिंग दैट आई डिड वाज, जितने भी PYQs से 2013 के बाद वाले, वो मैंने सबके मतलब आंसर्स बना के नोट्स बना लिए थे, एंड जितना भी मतलब उसको एक नोट्स भी बना लिए थे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो इससे मेरी इंट्रोडक्शंस, कंक्लूजन्स, जो डेटा डालना है उसमें, वो सब कुछ इसमें आ गया था। सो आई ऑल्सो गॉट द स्किल्स के ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है जब भी कोई मेंस का क्वेश्चन आएगा, तो हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन विद द लिमिटेड नॉलेज दैट आई हैव। तो these were my resources for the GS1 and but this year I did not join any course। जो insights का bridge course है वो मैंने GS1 का 2023 में किया था। इस बार सिर्फ मैंने revisions की थी, बहुत सारी brainstorming की, बस दिमाग में ही questions को solve किया। But here again I did not have any test series। मैंने कोई भी test series नहीं join की थी GS के लिए specifically, which was also one of the limitations which I'll discuss about later. Then comes the GS2। GS2 में भी I relied completely on Insights Bridge course। तो बहुत ही extensive material था मंजुनाथ सर का। I think it was उन्होंने सारा syllabus cover कर दिया था। I had just 4-5 notebooks of GS2 and I just kept revising them। तो GS2 में मेरे हर बार अच्छे ही मार्क्स आते थे, पिछली बार भी 115 थे, इस बार also I secured I think 114 or 115 marks in the GS2 and that was the only resource that I had, Insights का bridge course। And then उसमें सारे सर previous year questions भी करवा देते हैं, so वो भी टेंशन नहीं रहती कि previous year questions कैसे करने हैं। And again here also I did not follow any test series। एंड इनसाइट्स का ब्रिज कोर्स भी मैंने 2022 में किया था GS2 का, और 2023 में किया था। इस बार मैंने नहीं किया था, आई वाज जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स, और जो भी करंट अफेयर्स थे, करंट अफेयर्स के कुछ जो टॉपिक्स थे उस पे मैंने खुद ही अपने नोट्स बना लिए थे। देयर वर नॉट मेनी दिस टाइम, कुछ वी हैव द आइडिया कि क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल था, जहाँ डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का, देयर वर ओनली अ फ्यू, जहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। So there were a few topics जो इस बार करंट में थे, तो उसके नोट्स मैंने खुद बना लिए थे। And then comes the GS3 section। GS3 में एक आता इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, वो मैंने मृणाल सर के मेंस के जो नोट्स हैं दैट इज व्हाट आई फॉलोड। एंड एग्रीकल्चर के लिए एक फोरम IAS का, करंट अफेयर्स का,
एक मैंने मॉड्यूल ज्वाइन किया था, तो उससे काफ़ी कवर हो गया था। साइंस एंड टेक भी वहाँ से कवर हो गया था, फॉरम आईएएस के करंट अफेयर के मॉड्यूल से। एंड सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आई फॉलोड द इनसाइट्स का ब्रिज कोर्स GS3 का। एंड देन हियर अगेन आई फॉलोड द previous year questions for brainstorming as well as answer writing. And then comes the GS4 section. So GS4 section में पहले मैंने 2022 के अटेम्प्ट में और 2023 के अटेम्प्ट में सिर्फ अवधेश सर की जो बुक है वो फॉलो की थी, बट आई वाज नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन द ethics paper. So I was scoring only 100 something marks in the ethics. This time I changed my approach. I found that मेरे आंसर्स में कुछ भी यूनिक नहीं है, इनमें एग्जाम्पल्स नहीं है, इनमें कुछ भी पर्सनल टच नहीं है। सो इसलिए मैंने अब इस बार अपना एथिक्स का अप्रोच चेंज किया। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबको सॉल्व किया, काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उनके नोट्स बनाए, and I took a lot of help from the ChatGPT. So I used to ask ChatGPT to write the answer to this question, add some quotes, give me some examples with respect to this question. So ऐसे करके मैंने नोट्स बना लिए। तो इससे मेरे पास बहुत सारे कोट्स तैयार हो गए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स तैयार हो गए थे। जब मैंने टॉपर्स के कुछ उनकी आंसर शीट्स देखी तो उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स उठा ले, जहाँ फिर मुदित जैन सर का एक वीडियो था यूट्यूब पे, उन्होंने एग्जाम्पल्स कुछ दी हुई थी एथिक्स की, कुछ 50 एग्जाम्पल समथिंग। तो वहां से कुछ एग्जाम्पल जो भी मुझे अप्रोप्रिएट लगी कि मैं अपने आंसर्स में यूज कर सकती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर द एथिक्स। एंड इसकी केस स्टडीज के लिए भी आई रिलाइड हेविली अपॉन द ChatGPT से मैं वो केस स्टडी का सॉल्यूशन आई यूज टू आस्क इट टू राइट। I also used to ask it to write the quotes and examples or things like that, ताकि मैं अपने आंसर्स को यूनिक बना सकूं। तो एथिक्स के पेपर में भी आई सॉ दैट इन एवरी क्वेश्चन, जो पहला पार्ट था, आई यूज टू हैव कोट फॉर ईच एंड एवरी आंसर। सो आई यूज टू स्टार्ट माई आंसर विद द कोट एंड यूज टू एंड माई आंसर विद द कोट, बट इसमें आई कुड नॉट मैनेज द टाइम इन द एंड। तो मेरी केस स्टडीज के लिए मेरे पास आई हैड ओनली 1 hour लेफ्ट, तो आई कुड नॉट अटेम्प्ट द केस स्टडीज प्रॉपरली, but I managed to secure 114 marks in the ethics paper. And now coming to the essay paper. Essay paper के लिए I did not use any specific resource. एक मैंने देखा था विकास रंजन सर का ऐसे का वीडियो था, जो मैंने सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसके साथ ही था। तो मैंने सर का अप्रोच कुछ फॉलो किया। कुछ मुदित जैन सर का मैंने कोर्स लिया था ऐसे के लिए, तो उन्होंने काफ़ी अप्रोच बताए थे ऐसे लिखने के, बट आई जस्ट अटेंडेड 2-3 वीडियोस एंड उनका जो पेस्टल अप्रोच था कि डिफरेंट डायमेंशंस होनी चाहिए ऐसे में, एंड एक डायमेंशन दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब यू कैन नॉट अब्रप्टली एंड वन डायमेंशन, यू हैव टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। एंड द अदर थिंग दैट जो कोई आप एनेक्डोट शुरू कर रहे हो अपना ऐसे लिखने के लिए, वो उस एनेक्डोट को आपको कंक्लूजन में भी लेके आना है, सो दैट एक फ्लो बना रहे ऐसे में, और एक कंक्लूजन भी एक आप अच्छे तरह से उसको एंड भी कर सको। सो दिस इज द अप्रोच दैट आई फॉलोड। एंड देन एथिक्स के पेपर में जो तैयार करते हुए बहुत सारी कोट्स हो गई थी, दैट ऑल्सो आई यूज्ड विद इन द एसे पेपर। एंड बाकी की कोट्स जैसे हमारे एसेज में ही आती हैं, प्रीवियस ईयर्स के एसेज में जो कोट्स थी, मतलब विच एवर कोट वॉज रेलिवेंट फॉर दैट एसे आई यूज्ड इट। एंड इन वन ऑफ माई एसेज आई ऑल्सो डिस्क्राइब्ड द कोट विद अ कोट. So this is the approach I followed for essay, and that's it for the GS and the essay part. And now coming to sociology. Sociology में as I told you, जो मेरा 2022 वाला अटेम्प्ट था, मैंने सिर्फ बुक पढ़ी थी नितिन सांगवान, तो मेरी कुछ सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाई, और आई वॉज एबल टू स्कोर ओनली 157 मार्क्स इन द सोशियोलॉजी। फिर मैंने विकास रंजन सर के नोट्स फॉलो किए सोशियोलॉजी में। एंड विकास सर की ही इस बार मैंने टेस्ट सीरीज लगाई। तो टेस्ट सीरीज में भी आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 3 टेस्ट, क्योंकि मेरे पास टाइम होता ही नहीं था चीजें करने का, तो मैं सिर्फ 3 टेस्ट ही लिख पाई थी। एंड 3 टेस्ट लिख पाई थी, बट जब मैं पेपर दे रही थी तो आई सॉ कि उन 3 टेस्ट में से ही कितने क्वेश्चंस थे। सो आई वाज जस्ट रिग्रेटिंग कि अगर मैंने 8 टेस्ट लिखे होते मेरे सोशियोलॉजी और अच्छे से हो पाता। सो एंड आई ऑल्सो फॉलोड द स्लीपी क्लासेस। कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आई यूज टू गो टू द स्लीपी क्लासेस की वीडियोज फॉर दैट,
एंड जो पहले 3 चैप्टर्स हैं सोशियोलॉजी के पेपर 1 के, तो उनमें मैंने नितिन सांगवान और स्लीपी क्लासेस को काफ़ी फॉलो किया। बाकी की चीज़ों के लिए ज़्यादातर मैंने विकास रंजन सर के नोट्स और विकास रंजन सर की टेस्ट सीरीज को ही फॉलो किया। सो दिस इज ऑल द रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन. And now I also want to discuss with you the mistakes that I committed during my preparation. The first and foremost and the most prominent mistake that I committed was that I had lack of self-belief. So मुझे कभी लगता ही नहीं था कि I can clear the UPSC examination. So this is what something that has prolonged my journey. कि मैंने कभी पहले 3 attempts में मैंने preparation ही नहीं की, मतलब I just appeared for the exam without preparing. So had I prepared back then, I believe that the journey would not have been prolonged so much. Second mistake was that I was not able to do the year-long preparation. तो मेरी preparation हमेशा start होती थी prelims के 3-4 महीने पहले, और means I used to do only within the time period between prelims and means. So this is something that the aspirants should not commit, and year-long preparation is something that leads to success in short period of time. And third thing was that I did not write the test, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं लिख रही थी, मेरे पास टाइम की कमी थी, तो मैं टेस्ट लिख नहीं पाती थी मेंस के। तो इसलिए जब अभी भी जो इस बार वाला एग्जाम भी था उसमें भी आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज द टाइम। तो आई बिलीव कि दिस टाइम मेरे रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं थी, बट वही कि मेरी स्पीड नहीं थी। तो हर पेपर में लास्ट के 4 क्वेश्चंस मैं 5-5 मिनट में करती थी, तो वो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मतलब आई वॉज नॉट एबल टू राइट देम प्रॉपरली। सो दैट इज ऑल्सो बाय मेरे काफ़ी मार्क्स कट गए होंगे उस पर भी। एंड सेम थिंग वॉज विद एथिक्स एज वेल। एथिक्स के केस स्टडीज में आई वॉज नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, क्योंकि टाइम कम रह गया था। आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज द टाइम प्रॉपरली. And so these were the mistakes that I committed, and that's it. I hope that this video will be useful to you with respect to my journey, also the resources that I used. You can make your own strategy. Do not blindly rely on the strategies used by other people, and I have shared the resources so that if there are any gaps in your preparation, if you want some kind of guidance, sometimes we don't know from where to finish particular subject, from where to finish particular topic. So if we have that kind of doubts, so this is where the resources used by the people who have cleared the examination become handy. Otherwise, I believe that everyone should have their own strategy, and because only they know what works for them. So that's it. Thank you very much.